Good morning, students. How are you all? I hope you all are well. Students, today I will give you the solution of your test paper. So, see here. Beta, I have taken your test of chapter 9, The Blossom Tree, and the poem Wandering Singers. Okay? See question number 1. Write T or not anti for true or not true. आपको टी लिखना था ट्रू के लिए और एंटी लिखना था नॉट ट्रू के लिए. द मिस्ट्री ऑफ द रूटन ट्री वॉज सॉल्व बाय द कारपेंटर. क्या रूटन ट्री की मिस्ट्री को कारपेंटर ने सॉल्व किया? नॉट ट्रू. द मिरेकल वॉज दैट द ब्लॉसम ट्री हैड गॉन रोटन ओवरनाइट. नो, इट्स ऑल्सो नॉट ट्रू कि ब्लॉसम ट्री ओवरनाइट में रोटन नहीं हुआ था. Question number 2. Identify the following sentences are declarative, imperative, exclamatory or interrogative. You have to identify the type of sentence. Chop the tree down tomorrow. It's a exclamatory. Where can I find a sweet shop? It's a interrogative. Question number 3. Complete these sentences with the correct question tags. He came here yesterday. So question tag is didn't he? Radhika loves cooking. Doesn't she? Because Radhika is a girl. She used for girl and loves, so doesn't she? Question number 4. Put apostrophes in the correct places. Apostrophes used for belonging and for the short form. The king's minister said nothing. After king, apostrophe. King's minister. It's a short walk from my school to the park. After it, apostrophe for the short form. Question number 5. Write the meaning of the following words. Luster is shed means shine or glory is lost. जब shine और glory खत्म हो जाए. Collapse means suddenly crumble and fall. अचानक crumble होना या गिर जाना. Question number 6. Write the answer of the following question. Who calls out to the wandering singers? Wandering singers को कौन call out कर रहा था? The voice of the wind. हवा की आवाज़ें. What did the king ultimately decide? King ने ultimately क्या decide किया? The king ultimately decided to let the woodcutter chop the blossom tree down. उसने क्या कहा woodcutter को कि blossom tree को cut कर दो. Write the answer of the following question in detail. How was the pillar repaired in the end? एंड में पिलर कैसे रिपेयर हुआ? द पिलर वॉज रिपेयर्ड बाय बाइंडिंग ट्रंक्स ऑफ 3 बिग ट्रीज. 3 बिग ट्रीज के ट्रंक को बाइंड किया गया टुगेदर इंस्टेड ऑफ यूजिंग द ट्रंक ऑफ द ब्लॉसम ट्री. ब्लॉसम ट्री के ट्रंक को यूज़ करने की जगह 3 पेड़ों को के ट्रंक्स को बाइंड कर दिया गया. ओके, ये तो था आपका सोल्यूशन. एंड विच चैप्टर वॉज गोइंग ऑन? अंकल रिचर्ड्स न्यू ईयर डिनर. सी, कहाँ तक पहुँच गए थे हम? अंकल रिचर्ड्स ने प्रीसी को उनकी किचन में देख लिया था. फिर क्या हुआ? आई केम अप टू कुक योर डिनर फॉर यू. अंकल रिचर्ड्स, शी स्टैमर्ड. आई हर्ड यू से दैट यू वर स्पेंडिंग न्यू ईयर अलोन. सो आई थॉट ऑफ अ कुकिंग अ न्यू ईयर डिनर फॉर यू जस्ट लाइक फादर्स एंड माइन. बट आई मीन टू स्लिप अवे बिफोर यू केम होम. Stammered means said something with difficulty. मुश्किल से कुछ कह पाना. मैं आपके लिए डिनर बनाने के लिए आई थी अंकल रिचर्ड्स. मैंने सुना था कि आप अपना न्यू ईयर अकेले बना रहे हो. सो मैंने आपके न्यू ईयर डिनर के लिए सोचा एक फादर जस्ट लाइक फादर, जैसे कि आप मेरे फादर हो. और मैं ये सोच रही थी कि मैं आपके आने से पहले यहाँ से चली जाऊँगी. It was very kind of you, said Uncle Richards. I am surprised that your father let you come. ये तो तुम बहुत काइंड हो, अंकल रिचर्ड्स कहते हैं कि मैं हैरान हूँ तुम्हारे फादर ने तुम्हें यहाँ कैसे आने दे दिया. Say true or not true? Uncle Richard was surprised to find Prissy in his kitchen. क्या अंकल रिचर्ड सरप्राइज से प्रीसी को किचन में देख के? Yes, it's true. Prissy's fathers did not want her to visit Uncle Richards. क्या प्रीसी के फादर नहीं चाहते थे कि वो अंकल रिचर्ड के घर जाए? इट्स अ नॉट ट्रू, क्योंकि उसके फादर तो घर पे ही नहीं थे, तो उनको तो पता ही नहीं था कि प्रीसी जा रही है. फादर वॉज नॉट एट होम बट ही लव्स यू अंकल रिचर्ड्स. फादर घर पे नहीं थे बट वो तुम्हें प्यार करते हैं. हम सैड अंकल रिचर्ड्स. अंकल रिचर्ड्स हैरान होके बोले,
Well, since you have cooked the dinner, you must help me eat it. It smells good. I must say, sit down. Prissy, I am hungry. अंकल टीचर ने कहा कि तुमने इतना अच्छा डिनर बनाया है तो बैठ के मेरे साथ खाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है. They sat down. Uncle Richard was evidently very hungry because he ate very little bit of food on his plate with great relish. He talked to Prissy too, quite kindly and politely, and when the meal was over, he sighed slowly. वो बैठ गए. अंकल रिचर्ड्स बहुत हंग्री लग रहे थे क्योंकि उन्होंने बहुत थोड़ा सा खाना अपनी प्लेट में डाला था इंजॉयमेंट के साथ. और उन्होंने प्रीसी को क्या कहा कि तुम बहुत काइंड हो, पोलाइट हो. जब मील ओवर हो गया तो उन्होंने धीरे से क्या कहा, आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं तुम्हारा बहुत ग्रेटफुल हूँ प्रीसी, एंड आई एम सॉरी फॉर क्वारलिंग विद एरिविन. आई वॉन्टेड टू बी फ्रेंड्स विद हिम अगेन बट आई वॉज टू ashamed and proud to admit it. Will you tell him so for me? And if he forgives me, tell him I had liked to spend some evening with you too, like the old times. प्रीसी, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और मुझे बहुत दुख है कि मैंने तुम्हारे फादर के साथ झगड़ा किया और मुझे इस चीज़ के लिए शर्मिंदा भी है और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करता हूँ. और यदि तुम्हारे फादर मुझे माफ़ कर देंगे तो मैं कुछ इवनिंग तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ जैसे हम पहले बिताते थे. ओह, यू शुड कम, क्राइड प्रीसी joyfully. We will be one happy family again, Uncle Richard. तुम्हें आना चाहिए, उसने बहुत खुशी से कहा प्रीसी ने. हम फिर से एक हैप्पी फैमिली बन जाएंगे. अंकल रिचर्ड लुक्ड एट हिज नीस विद अ स्माइल. अंकल रिचर्ड ने नीस को एक स्माइल से देखा. यू आर अ काइंड हार्टेड गर्ल, तुम बहुत ही काइंड हार्टेड गर्ल हो प्रीसी, एंड यू हैड नेवर हैव कुक्ड अ डिनर फॉर एन ओल्ड अंकल हु डिजर्व टू ईट कोल्ड डिनर फॉर हिज stubborns. It made me cross today when people wished me a happy new year, but it has brought me my family back already, and I believe it will be a happy year all the way through. तुम बहुत काइंड हार्टेड गर्ल हो, तुमने मेरे लिए डिनर बनाया और जो कि एक कोल्ड डिनर को ही डिज़र्व करता था, और मेरी जिद की वजह से, उन्होंने जिद की थी ना और उसे नहीं मनाया था. इट मेड मी क्रॉस, मुझे बहुत गुस्सा आया जब लोगों ने मुझे न्यू ईयर विश किया, लेकिन आज मुझे वापस बहुत खुशी हो रही है और मुझे ये बिलीव है कि मैं अपना न्यू ईयर हैप्पी बनाऊंगा. इंडेड इट विल, लाफ्ड प्रीसी. प्रीसी ने कहा ज़रूर. यू मस्ट प्रॉमिस टू कम एंड स्पेंड न्यू ईयर्स डे विद फादर एंड मी. आपको हमें प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप मेरे और फादर के साथ न्यू ईयर मनाओगे. अब वो मनाने जाएगा ना न्यू ईयर. आवर चैप्टर हैज़ कम्प्लीटेड, हमारा चैप्टर तो कम्प्लीट हो गया. Who is the writer of our chapter? Lucy Maud Montgomery. She was a Canadian author. वो एक कनाडा की ऑथर हैं. Best known for Anne of Green Gables. वो ग्रीन गैबल्स के लिए जानी जाती हैं. Anne of Green. She was a prolific writer. वो बहुत अच्छी राइटर हैं. Who published over 500 short stories. जिन्हें 500 short story पब्लिश हुई हैं. उनकी ऑटोबायोग्राफी and a book of poems, और poems की बुक भी. देखो कितने अच्छे राइटर्स ने, बड़े राइटर ने आपके लिए एक चैप्टर लिखा है, तो आपको उसको अच्छे से पढ़ना है. ओके बेटा, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.